The Waqf Board itself is a statutory body. 3C4. If there is any wrong writing in the records of the Waqf Board, that can be challenged by the government in accordance with law. The government cannot direct the Waqf Board to make the correction. This itself is hit by the doctrine of dictation. Madam, apart from the survey, there are currently the Honorable Supreme Court time and again reiterated. Survey records, they are mostly relying. Madam, the Honorable Supreme Court time and again reiterated that revenue records are not documents of title and they do not vest the right of ownership as a property to the individual named in the land record. Reference are so many references is there. I am not, this is an elementary thing. Any law student also know this branch of law. Unfortunately, this has not been taken care of by the central government. Clause 5E, the proposed amendment amounts to create subclause among the Muslims for the purpose of giving birth to give this dispute. Clause 9 of the proposed bill provides to Clause 9 is totally unacceptable and it provides 2 members appointed under this subsection shall be non-Muslim. The exclusion of Muslim community persons from holding the post of 2 members in the Waqf Board is hit by Article 14 of the Constitution of India, which provides equal opportunity to everyone. In the case of Hindu temples, the non-inclusion of Hindus cannot be imagined. We can't imagine. For example, under Section 6, subsection 2(1) of Uttar Pradesh Kashi Vishwanath Temple Act, it has been specifically mentioned that there are 3 eminent Hindu scholars well versed in the Hindu. A line has been set, a point has been taken. You see, these are the state law, but it is a central law. Law means within the ambit of Article 246 of the Constitution of India. Law doesn't mean beyond that 246. If a law is within the Article 246 of India, there cannot be discrimination between a state law and central law. This is kind of unthinkable stand has been taken. I cannot think about this. After long 44 years practice, I can't think. No, it's a state law. It cannot be compared with the central law. What is that? Law is having its own force. Read Article 13 of the Constitution of India also. What is law? Madam, Clause 11 of the proposed bill seeking amendment of Section 14. That is amendment of original act suffers from same illegalities. Clause 14 of the proposed bill whereby Section 20A of the original act, that is removal of the chairperson by vote of no confidence has been deleted. Such deletion is also improper, illegal, because if the chairperson does not enjoy the confidence of the other members, how can he sit there? It's a question of democracy. If the chairperson does not enjoy, madam, can you sit there if you don't enjoy the majority's confidence? If you cannot enjoy the majority's confidence, you have to leave. That is the democratic setup in our country. Madam, amendment of Section 36, subsection 3 is effectively taking away the power of the Waqf Board. Regarding receiving of registration of Waqf, and such amendment has been empowered the central government in an indirect manner to control everything. All powers have been taken. Why you are not making it the Honorable Minister? The Minister of Minorities will decide everything. He will be the supreme. Nothing is required. Finished. You can do it. Clause 20 of the bill amending of Section 40 of the original act. If Section 40 is deleted, madam, the Waqf Board power itself will be teethless doll. If Section 40 is amended and Section 40 is taken away, the Waqf Board will be a teethless doll only. If Section 40, then there is no necessity to keep the Waqf Board itself. Do not keep it. Keep the power with the minister of the central government. Minister will decide what is the necessity of the Waqf Board. Everything will be done by him. Because the power to regulate the statutory Waqf Board. This is complete. Madam, I will take some time, please. Complete reason I am reading very fast. I am going very fast. Waqf Board. The proposed amendment bill under Clause 21 seeking amendment of Section 46 of the original act once again empowers the central government to make regulations with respect to so and so. Therefore, state power has been taken away. Does it not violate the federal structure of this country? Every power of the state government has been taken away. Only central will do it.
That cannot be. The violates the fundamental character of the Constitution. मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। किसी को नहीं बनाया दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है। जो शरणार्थी बन के आया है उसको गले से लगाया है। और केरल की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं केरल की भूमि को, प्रणाम और वंदन करता हूं केरल की भूमि को। वहीं से आदि शंकराचार्य जी भी आए और केरल की भूमि में कोडंगलूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है भारतवर्ष की पहली मस्जिद चेरामल जुमा मस्जिद। और चेरा राजा चेरामल पेरुमल ने इस मस्जिद के लिए जगह स्थान दिया था। यह है भारत का कल्चर, यह है भारत माता। और इस भारत के ऊपर आप संदेह दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मैं यहां कहना चाहता हूं जहां तक दान, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थी, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय में बता रहे थे, सेवा और दान, इसके आधार पर सिख धर्म आज देश का विदेश में जाना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब में दान का महत्व है। आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भज गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपति नाम, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तं, ध्येयं दीन जनाय जवित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। और वही इस्लाम में भी ज़कात, सदका और सदक़े जरिए के नाम से जिक्र किया गया है। वक्फ जो दान की जमीन और पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए वक्फ बनाया गया है। वक्फ के बोर्ड में आज जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस आधार पे कह सकते हैं? 1995 में वक्फ एक्ट आया, मतलब उससे पहले से चल रहा था। 1995 एक्ट के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। 1995 के बाद आप याद करिए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले 1954 में, 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए हैं। अगर वो सारे संशोधन ठीक थे तो आज ये संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकते हैं? मैं छोटे से एक विषय को रखना चाहता हूं।
आज आप देखिए, सच्चर कमेटी ने 2006 के अपने रिपोर्ट में कहा था, सच्चर कमेटी ने कहा था कि उस समय 2006 में वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। उस 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मात्र वक्फ की जो कमाई हो रही थी वो उस समय 163 करोड़ की थी। मगर सच्चर कमेटी ने कहा यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज दिया गया होता, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती, 12,000 करोड़ की, 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़, और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी 9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़, और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़। प्रॉपर्टी डबल हो गई मगर पैसे घट गए। कहां गए वो पैसे, किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको, आप, अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूं, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं। हाँ, उधर 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 उधर, आप भी जानते हैं किधर हैं, उधर हैं।